Okay, so today we start with the networking in Java. So it describes the input and output fundamental. It construct the node of processing stream and use them, distinguish reader and writer from the stream and select the appropriately between them. It develop the code to set up the network connection, understand the TCP and IP protocol, use the server socket and socket class for implementation of TCP and IP client server. So first of all, we have to discuss about what is the networking. Computer running on the internet communicate to each other by using TCP and IP protocol. So in computer, you can work with by using of TCP and IP. So whenever you are giving a request to a computer, all the request it is put in a queue. तो at a time मतलब एक समय पर क्या होगा, बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, बहुत सारा जो यूजर है वो फेसबुक को रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे. ओके, जब फेसबुक में वो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एट ए टाइम देयर मे बी ए कोलिजन. तो यहाँ पर फेसबुक क्या करता है ना, सारा रिक्वेस्ट को एक क्यू में डाल देता है और एक एक करके उसको एक्सेस करता है. द कंप्यूटर रनिंग ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन टू ईच अदर यूजिंग TCP and IP protocol. तो TCP और IP protocol में वो काम करता है. So you are giving a request and your request comes to the server. Okay, so from the server it is accessed. Okay, and another is IP protocol is present. IP contain the address of the location where you access the limit. When you are giving a request, it put in a queue. Okay, so एक queue में डाल देता है and it convert into a small packet. Every packet contains the sender address and receiver address. Every packet contains the sender address and receiver address. कौन सेंड कर रहा है और कौन रिसीव करेगा, और वहां पर एक आईपी एड्रेस होता है. आईपी एड्रेस के थ्रू में आपका एप्लीकेशन एक्सेस होगा. यही है आपका बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग विद द जावा टेक्नोलॉजी. In the networking we are using sockets. Just a minute. So socket is called as the two stream. मतलब ये दो एंड होता है, इसको बोला जाता है सॉकेट. ओके, वहां पर एक इनपुट स्ट्रीम रहता है और आउटपुट स्ट्रीम रहता है. दो सॉकेट में मतलब एक आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा और एक यहाँ पर लिसन करेगा. The socket hold the two stream. One is input stream, another is output stream. Each end of the socket has a pair of stream. Okay, setting of network connection, it is similar to a telephone. Okay, so it is similar to a telephone. One end must dial and other end must listening. एक एंड में आपको क्या होगा ना, आपको आप डायलिंग करोगे और एक जो पार्ट होता है वो आपको लिसन करेगा. ओके, दैट इज ऑल द टू स्ट्रीम. To address the connection include the following: the address or name of the remote machine or port number to identify the purpose of server. जब आप नेटवर्किंग में सेट करोगे और नेटवर्किंग में कनेक्शन करोगे, एक पोर्ट नंबर होता है. उस पोर्ट नंबर से आप लिसन कर सकते हो, डाटा सेंड कर सकते हो. A port number identify the purpose at the server. The port number is ranging between 0 to 65,535. This port number is ranged from 0 to 65,535. So here we are using server and client. We are using
server and client, the two portal you are using. Okay, one is server, another is client. Okay, socket hold the two stream. Okay, so we are using server, another is client. इन सर्वर में क्या रहता है ना, एक आउटपुट स्ट्रीम रहता है, इनपुट स्ट्रीम रहता है. ओके, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम. क्लाइंट में भी आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम रहता है. मतलब आप दोनों पार्ट से, सर्वर और क्लाइंट में दोनों पार्ट से आप हियरिंग कर सकते हो और लिसन कर सकते हो. ओके, मतलब एक एंड सुन सकता है, एक और लिसन कर सकता है. समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? यस सर. जो यहाँ पर ध्यान देने का बात है क्या, आपका जो पोर्ट नंबर है टू एड्रेस द नेम एंड रिमोट मशीन, द पोर्ट नंबर दैट यू आर गिवन दैट इज 0 to 65,535. Okay, so you have to give a port number. Okay, so आपका जो पोर्ट नंबर है इसका रेंज इसके अंदर ही रहना चाहिए. Okay, so this port number to identify the purpose, the range 0 to 65,535. So next is सर. सर हम पता कैसे चलेगा कौन सा पोर्ट नंबर डिफाइन करना है पर्टिकुलर जैसे? वो मतलब 8080 बेसिकली वो रहता है 8080 पोर्ट नंबर. ओके, और आपको ऑटोमेटिक क्या होता है, मतलब इसके अंदर ही आपको देना है. ऐसा नहीं है कि आपको देखना है कौन सा ऑक्युपाइड हो गया है, तो इसके अंदर ही आपको देना पड़ेगा. सो सर ये पोर्ट नंबर हम एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा सेंड करने के लिए यूज करेंगे? हाँ हाँ, एक मशीन से दूसरा मशीन. सो सर पोर्ट नंबर हमें पता कैसे रहेगा सर कौन सा पोर्ट नंबर किसका क्या पोर्ट नंबर है?
ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ही देना है, इसके रेंज के अंदर ही देना है। अच्छा। तो 0 से लेकर 65,535 तक आप दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूँ, so that is helping you get computer name. Suppose get own IP address. ये आपका हो गया प्रोग्राम जो आपका आईपी एड्रेस शो करना है। So let's check here. First I run the application. Okay, so it is showing you the IP address of the system. तो आपको अगर पता करना है हमारा IP एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पर एक मार देता हूँ। So this is my IP address. तो ये आपका IP एड्रेस यहाँ पर रिट्राइव करके दिया। ओके, यस सर। तो IP एड्रेस कैसे पता चलेगा? तो पहले जावा में नेटवर्किंग में काम करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इंपोर्ट java.net.star inet address object own IP inet address get localhost। localhost मतलब एक सर्वर का नाम वो रिट्राइव करता है, ओन आईपी में वो स्टोर करता है। उसके बाद हम इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट पोस्ट एड्रेस, इसका एड्रेस आकर आपका यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पर आपको मैसेज में वो शो करेगा।
उसके बाद हम यूज करेंगे गेट कंप्यूटर नेम। ओके, तो कंप्यूटर नेम रिट्राइव करने के लिए स्ट्रिंग कंप्यूटर नेम inet एड्रेस गेट localhost डॉट गेट होस्ट नेम, ये हमने यूज किया। अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है ये आपको एरर यहाँ पर शो करेगा। Okay, so it is a computer name. So how you can check the computer name here? inet address get localhost host name. So right click, computer name is here again. These are the computer name. Okay, यहाँ पर शो किया कंप्यूटर नेम। ओके, तो ये हम प्रोग्रामेटिकली भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामेटिकली अगले वाला दिखाया, string computer name inet address get localhost get host name. Okay, then system.out.println, it is showing you the computer name here. If any kind of exception is present, so it is handle the exception here. Okay,
Okay, so next program, IP address is over, then computer name, IP address, OS name. Okay, so it is used for getting the it is used for getting the operating system name, string OS name, system.get property OS.name. Okay, so it's showing you e.get message. Okay, system.get property OS.name, then OS.name, then catch e.get message. So तो यहाँ पर हमने जो एग्जीक्यूट किया गेट जावा सी, वो गेट ओएस डॉट नेम जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 8। ये समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। सर ये सब तो प्रॉपर्टीज हम जनरली ऐसे ही पता कर सकते हैं, तो नेटवर्किंग का अलग यूजेस क्या है, मतलब एक्स्ट्रा हम क्यों यूज करें? तो ये तो नॉर्मली हम बता रहे हैं, बहुत आगे और एक बड़ा प्रोग्राम है। ओके, तो जो अच्छा। सर्वर क्लाइंट चैटिंग सिस्टम, जैसे चैट करेंगे
मतलब हम तो एक ही मशीन में करेंगे तो इसलिए चैटिंग सिस्टम अलग रहेगा। ओके, मतलब इस मशीन को ही हम सर्वर बनाएंगे, इस मशीन को ही हम लोकल बनाएंगे। ओके, लेकिन हम अगर नेटवर्किंग में होंगे तो सर्वर का प्रोग्राम इसमें रन करेंगे और क्लाइंट का प्रोग्राम और दूसरा जगह पर रन करेंगे। यस सर। ठीक है, और एक प्रोग्राम जो है वो एक बड़ा प्रोग्राम है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो सर्वर क्लाइंट चैटिंग सिस्टम क्लास लगेगा। तो इसको खत्म करने के बाद हम JDBC शुरू करेंगे। ओके, तो कल इसको ओके सर। ओके।